came to a level where what I was doing, I was also getting a sense of satisfaction. After 84, then project started pulling, in my office. So I had a better staff. From my house, I shifted to I hired a place in Sector 26, Madhya Marg, where I have my office. But I never left the way I was working. My working system didn't change. When I have no money, I used to cut down my expenses. I used to start walking. तो कार ले लिया तो पहले उसके पेट्रोल का सिस्टम नहीं समझ में आया. फिर थोड़ी सी कार चलाते, थोड़ा सा वापस आते. So like that, people started giving me. The third big break I have in my life when I was in 1990. So a word spread around that this guy is very sincere, and what he commits, he delivers that. Now, this is what is called a reputation, in your profession. Now people started, thinking that okay, out of 20 people, if you get 2 people like this, so I think I can trust him. So that trust brought me a project, which was a 5-star hotel in Gurgaon. I was aspiring all my life, thinking my boss, my guru, and his contribution to my life was that he inculcated a value system in my life where I set my objective, and to achieve that, whatever I have to do in my life, honestly, sincerity, hard work, I suffered. That suffering gave me another opportunity. I designed that, and there was wow. After that, in 2000, I participated into another project that was designing a golf course. I had never designed a golf course. Never. I never knew what golf is. So when this opportunity came, it was advertised in paper. So me and another colleague of mine, we were sitting in the office, and I just read that, and I told my friend, I said, should we participate into this? So he said, क्या फायदा? एक तो सरकार का है. सरकार means अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई गॉडफादर है, तो ये प्रोजेक्ट आपका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. First thing. Second, it is also understood that whatever fees you will get, you have to distribute in the form of bribe to all these people. During this tenure, I had suffered a lot, by putting my hand into the government projects. So they are working, and corporate working is like 2 sides of one hand. If you are working here, you can't see this. If you are working on this, you can't see this. Now, with the kind of system I adopted in my life, I was total miserable and failure working with the government. Corporate world says, whatever you have, you take decision fast, move next. Corporate believes in achieving purpose, whereas the government believes in slowing down, decaying the project, achieving the process without achieving the purpose. So in government, you only run, and achievement is 0. In corporate sector, you achieve whatever you want, and you, like horse galloping, you go move on. So I lost my interest in all government projects. I was not participating in this also. But then a thought came overnight. I thought, let me participate, in the sense that okay, I forget whether I'll win it or not. हम क्या करते हैं कि ये प्रोजेक्ट करते हैं, इससे हमको गोल्फ के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे कुछ सीखेंगे. सो अ गाय हु वाज वर्किंग इन माय ऑफिस, तो मैंने उसे कहा कि हम टीम बनाते हैं ऑफिस में. वी वर 7 people. तो हमने कहा ऐसा करो,
जो बेस्ट लोग हैं ना, तुम सारे इकट्ठे होके एक तरफ चले जाओ और मेरे को जो सबसे रद्दी बंदा है ना वो मेरे को दे दो, तो मैं और वो काम करेंगे, आप 5 आदमी अलग काम करेंगे। सो वी मेक 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। सो कंपटीशन अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, तो हमने काम करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, 3-4 दिन के अंदर फटाफट 5 दिन में ये प्लान ड्रॉ कर, वो करते रहे। सो मी एंड माई दैट वीक पार्टनर, ही वॉज ए ड्राफ्ट्समैन, सो वी नेवर डिड एनीथिंग। एक हफ्ते के बाद थॉट आई, सो वी स्टार्टेड स्क्रिबलिंग। खैर वो बनाया, काम कुम किया, अल्टीमेटली प्रेजेंटेड दैट जो प्रेजेंटेशन थी और छोड़ दिया। सो इट पास थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी। तो अब मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो एक्सेप्ट करने बड़ी मुश्किल है। आई नेवर थॉट दैट आई विल दिस प्रोजेक्ट, कुछ नहीं। हमने सोचा कि इसका सीख लिया, चलो इतना बहुत बढ़िया हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक 10 लोगों की एक्सपर्ट्स की उन्होंने एक वो बनाई टीम, तो वो जूरी जो उसको सिलेक्ट करती थी। सो व्हाट वी डिड, आउट ऑफ द 60 सारे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट किए, इन्होंने 24-25 निकाले, तो निकले, तो उसमें आई क्वालिफाई। थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। तो वो करते कराते स्टेज केम जहाँ पे 5 लोग अल्टीमेटली रहे। सो उन 5 में व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर्स यू नो ऑन द गवर्नमेंट, ये प्रोजेक्ट मुझे मिले और कितना मुझे मिलने, क्योंकि सारे गोल्फर्स जो है ना एक्सेप्ट मी, बाकी सारे वो लोग कनेक्टेड थे विद द गवर्नमेंट जो IAS ऑफिसर्स के साथ सुबह गोल्फ खेलते हैं। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये अवार्ड दिया जाएगा या मेरा जो प्लान बनाया हुआ वो फर्स्ट भी कभी आ सकता है। आई नेवर रियलाइज, बिकॉज आई हैव डन एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि मैं बेस्ट परफॉर्म करूँगा अपने लिए, मिले या ना मिले, आई एम नॉट बॉदर्ड। सो क्या हुआ, इतना प्रेशर पड़ गया चारों तरफ से। सो एक आदमी के लिए 3-3 आदमियों की सिफारिश। तो आप चीफ मिनिस्टर हो, आप कहते हो मुझे दो, दूसरा फ्रेंड ने आपको बोला कि इसको दो, वो इतना कन्फ्यूजन हो गया। सो दैट एक्सपर्ट कमेटी अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट दिस वी कांट रिजॉल्व दिस, सो लेट्स गो ऑन मेरिट। एंड इट इज हूसएवर इज विनिंग, सो दैट द प्रोजेक्ट, हमारा पीछे छोड़ो, नाम CM को जवाब दे सकते हैं, नाम प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हैं। एंड while this was happening, I was sleeping in my house. I never knew what was happening over there. So रात को 11:30-12 बजे they decided that okay, this entry deserves first prize and और इसमें 5 lakhs rupees was the first prize. 5 lakhs. मुझे सुबह किसी का फ़ोन आया कि आपको बताइए आपका वो प्राइज विन कर गया। I didn't believe it. I thought फ्लूक मार रहा है सुबह एंड दिन में आके मेरे साथ कुछ और करेगा। बट एज द डे ग्रू, यू नो, another call came, third call, so they called me and he said कि हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दो आप। सो दैट वाज माय 4th and 5th ब्रेक इन माय लाइफ। अब मैं उसकी आपको खुशी का कोई इंतहा नहीं मैं बता नहीं सकता। दैट वाज अ रियल विन इन माई लाइफ। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ज़िंदगी में काम कर रहा था वो आज मेरा पूरा हो गया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा चलता रहा, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, प्रोजेक्ट्स आए चले गए, इधर उधर। इसी दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। नाउ when I talk to entrepreneurs with me, I ask them what is your objective, what is success, or what is real success in life. Everybody gives different definitions. There is nobody who starts his career, there is nobody on this earth who would say I don't want success. But what is success? What is real success in life? That is
a very different story with everybody. That is based on your own objectives, that is based on what you really want in life. And the journey of achievement all depends on what you want to pay for your objective in life. Most of us, we are so greedy, we don't want to pay the price. We are behaving like monkeys. I want that you should work for me and the credit should come to me. If you say, okay, I am going and you spend 20 hours on this work and by 24th hour you give me the work, then probably I'll just leave it. I'll withdraw myself. When it comes to sharing the fruit, then I'll be the first one. This is what is happening. Now, coming back to the first thing which I said initially in the beginning, my purpose of having an interaction with you is just to give you an inspiration that even if you don't make money, you are in the beginning of your careers, you are starting. So take it for granted that if a person jumps into a swimming pool and he thinks that I should not get wet, it is impossible, he is a fool. So in the career, when you are taking up as an entrepreneur, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपके अंदर कितनी सस्टेनेंस है उसको देखने की, कितनी सिंसेरिटी है उसको एब्जॉर्ब करके उसको राइटली रिजॉल्व करने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. कितना पैशन है आपके अंदर कि सारी चीज़ों को भूल के कि आप अपना फोकस जो है ना, देन यू हैव ए रेजर शार्प फोकस ऑन योर वर्क. वो चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दो, वो उसको शॉपकीपर का नाम दे दो आप. देन यू आर ए ट्रेडर इन लाइफ. आप इधर का सामान उठा के उधर दिया, उसका सामान किसी को लक्ष्य बेच दिया आपने उठा के, किसी को सर्फ मांगा उसको दे दिया. दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. दूसरी बात जो आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, जब हम इस दौर में आते हैं तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फियर्स. फियर्स क्या है कि मैं फेल ना हो जाऊँ. सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ कभी? So fear? हाँ? I would say fear अच्छा भी है कभी कभी. पर थोड़ा डर लगता है ना? थोड़ा तो लगता है लेकिन अच्छा भी है. नहीं लगता है ना डर. तो कोई ऐसा नहीं है जिसको फियर ना लगता हो कि यार मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा. ठीक है. सो द पर्सन हु थिंक्स सो व्हाट, फेल हो गया तो क्या हो गया, सो व्हाट. एवरी फेलियर it gives you a new light in life. It teaches you how to win, how to cover that journey again, and that is what is called experience. Experience has no substitute. With sitting here without a failure, if you think that I have passed, this is no achievement. You have not passed. ये कहते हैं ना कि taste of the pudding lies in eating. बिना उसके कैसे बता सकते हो टेस्ट कैसा है. एंड इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ. इफ somebody can resist this, you can pass through this with a sharp focus, then you are out. फिर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते. एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाओगे तो उस ऑर्बिट के लोग जो है ना, वो आपको उसकी जो फोर्सेस है वो आपको नीचे नहीं गिरा सकते. Am I clear? This is one orbit from where you start. So all the forces, they start converting into the axle, like in the center point. So if you try to move out of that orbit, you have to go into the second orbit. तो क्या है, जिन फोर्सेस के बीच में आप घुसे हो
वो फोर्सेस आपको अंदर की तरफ खींचेंगे। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, अगर कोई एक आधा कोई ठीक होगा 100-200 में से, तो वो आपको प्लेटफॉर्म देगा ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी सारे घर वाले मिला के आपको नीचे को खींचेंगे, विच मीन्स दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू टुवर्ड्स द सेंटर, कि तुम यहीं अटके रहो। लाइक इंडियन क्रैब स्टोरी, जो क्रैब ऊपर चढ़ता है उसको नीचे फटाफट खींच लेते हैं। तो इसलिए इंडियन जो क्रैब्स हैं उनके जो डब्बे जाते हैं ना बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लिड्स नहीं होती, नीचे गिरा देते। सो हाउ यू मूव आउट ऑफ दिस, यू हैव टू वर्क लाइक ए मिसाइल, फोकस ऑन वन थिंग एंड यू हैव टू बी शार्प। क्या फ़र्क पड़ता है आपने चप्पल पहनी है, पैंट पहनी है, पजामा पहना है, सूट पहना है, क्या पहना है, अगर आप इसी की तरफ देखते रहोगे तो यू आर गॉन। बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो एबीसीडी, अगर आपका फोकस है और उसको कैसे हैंडल करना है, सो ऑनेस्टली काम करोगे, द गॉड विल बी विद यू। हम्बली मुश्किल को पार करोगे, गॉड विल बी विद यू। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओगे तो आप एक समझो भी ये छोटे एक मारुति 800 के इंजन से आपका जो अंदर वाला इंजन है वो बड़ा इंजन बन गया, 5000 सीसी वाला इंजन बन गया। ऐसा नहीं है कि 2000 वाला या 800 वाला काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाओगे तो उसकी एक लिमिट है ना, जैसे हम छोटा काम करते हैं, छोटे हिसाब से करते हैं, उसकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट तक ग्रो कर सकते हो। उसके बाद ग्रो करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आप अपना वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपकी फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये सारे पैरामीटर्स जो है ना आपको बढ़ाने होंगे ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ लाइफ। विदाउट दिस, इफ समबडी थिंक्स दैट आई विल बिकम वेरी रिच, मेरा इतना ग्रो हो जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा, कुछ भी फॉर्म में हो, चाहे कंसल्टेंसी हो, आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, जो मर्जी दुनिया का काम कर रहे हो, यू विल बी अ फूल टू थिंक ओनली वन फैक्टर वर्क्स, वो है आपकी लक। अगर आपकी लक इतनी फेवर कर रही है, आपने पता नहीं क्या कोई पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, इतना बढ़िया काम किया हो कि वो आपको प्लेटर के ऊपर मिल गया, तो हो सकता है ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले कि आप बिना मेहनत करे ऐसे खटक करके ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन उस समय भी अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो यू विल फॉल लाइक ए हॉट ब्रेक। वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड पोजीशन होती है। कहने का भाव ये है कि हर सिचुएशन के अंदर मेरा कहना यह है कि अपने कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ, ऑनेस्टली काम करो, लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन अ राइटियस वे। तो जब आप ये सारे काम करोगे तो आप फिर MBA वाले सर्कल में जाओ तो वो आपको फिर फार्मूला बताते हैं। आप शिव खेड़ा की बुक पढ़ो तो वो आपको ना आपको एक पॉइंट वाइज बताएगा कि मैंने क्या किया और ऐसे ऐसे क्या क्या होता है। ठीक है जी। आप स्टीव, क्या नाम है इसका, जॉब्स, यस, स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ो। आई एग्री विद एवरीबडी, यू गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। लेकिन आपकी लाइफ, इनकी लाइफ, इनकी लाइफ, मेरी लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कहो तो वो मेरा आइडियल है और मैं वही काम करूं जैसे उसकी बुक में लिखा हुआ है, और अगर मैं वैसे वैसे काम करता हूं तो क्या मैं स्टीव जॉब्स बन सकता हूं? द आंसर इज नो। सिंपल रीजन इज वाई। अगर आप इसको एनालाइज करके देखो, now Steve Jobs had a different kind of circumstances, he had a different kind of objectives. When he worked to resolve those problems, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट होगी, उसका पैशन डिफरेंट था, उसका प्रोफेशन डिफरेंट था, उसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट था, सब कुछ था। वो आपके पास हो सकता है एक भी ना हो। उसकी फेवरिंग कंडीशन डिफरेंट थी, उसकी अनफेवरिंग कंडीशन डिफरेंट थी। सो विच मीन्स
all those things put together, if you copy this, जिसको कट कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना आज की लाइफ में, you can't do that, you can't achieve, you can't make that painting what he has done in life. Leave that aside, go to the deep bottom. बॉटम की लाइफ को जैसे छलनी को छान के देखते हैं ना, आटे को छानते हैं, तो जो बच जाता है वो सेम है. वो रेजिड्यू फॉर एवरी ऑनेस्ट सक्सेस इज द सेम. वो क्या है? वो पैशन है, उसकी सिंसेरिटी है, उसको लोगों ने काम किया, सब कुछ दिया. ये बात क्लियर हो गई. ये मेरे एक्सपीरियंस है. एक और एक्सपीरियंस आपको मैं छोटा सा आपके साथ शेयर करूँ अगर टाइम है. Yeah, we have 5 minutes, then we'll ask 5 minutes. questions. When I studied architecture, I think Archana and Ram will agree with me. हमारी डिज़ायर्स थी कि हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए करें, तो हम लोग स्केच बनाते थे. तो एक बिल्डिंग का हमने स्केच बनाया एंड आई शो टू वन बिग आर्किटेक्ट. तो उसने ना ऐसे उठा के ना ऐसे फेंक दिया. ये मैं आपको बड़ी सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ. तो उसने ऐसे उठाया और वो कॉन्सेप्ट उठा के ना उसने ऐसे फेंक दिया. कहता क्या है? तो मेरे दिल में रंज पैदा हुआ. तो आई सेड ओके,